अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं, जो ह्यूमंस बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर रहा है। सो दैट इज अ थिंग। यही आपका चीज है जो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जब आप काम करोगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सिस्टम को क्रिएट करना चाहोगे, so in that situation that system has the property to analyze the, or that system has property to understand the human language, and that is the concept of natural language understanding। मतलब जो भी हम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जो भी हम एक सिस्टम बनाएंगे, वो सिस्टम क्या करेगा, वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा ह्यूमन लैंग्वेज को। जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज में हम सिस्टम से बात कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज में हम सिस्टम को कमांड दे रहे हैं, so that thing is understandable by the system। Okay, so sometimes this language is ambiguous. Ambiguous is a very important part in natural language processing. Ambiguity. Ambiguity means what? The data, like suppose sometimes we are talking with, sometimes we are using a word, and that word has different kinds of meaning. It has some kind of noun. It has some different kind of meaning. Means we can use it as, sometimes we can use it as noun. Sometimes we can use it as a verb. Sometimes we can use it as adjective. So in that situation, we can analyze the concept of ambiguity. So ambiguity means what? The word that have different meaning and the sentence that have different meaning. So this is called ambiguity. So जब भी हम सिस्टम के साथ बात करें या सिस्टम को हम कोई भी अगर कमांड दे रहे हैं, तो एक सेंटेंस का हो सकता है कि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में काम करे या उसका डिफरेंट मीनिंग हो। जैसे मैंने लास्ट ही बोला था कि सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग अ वर्ड बैंक, so bank has two meanings, means वहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन के टर्म में भी बात हो रही थी, और सेकंड थिंग इज व्हाट, लाइक रिवर बैंक। सो दिस इज द एम्बिग्यूटी। सो सिस्टम को नहीं पता है कि जो आप वर्ड बोल रहे हो या जो आप सेंटेंस बोल रहे हो, सिस्टम विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इजीली। तो उस जगह पे क्या हो जाती है, एम्बिग्यूटी की कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सबसे जो बोल सकते हैं एक तरह से कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम जब भी हम क्रिएट करते हैं, उस सिस्टम का सबसे इशू ये होता है, सबसे ज्यादा इशू होता है एम्बिग्यूटी का, कि हम सिस्टम को बोलना कुछ और चाह रहे हैं और सिस्टम समझ कुछ और रहा है। बिकॉज वो सिस्टम ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक सिस्टम है, वो एक मशीन है। मशीन के पास इमोशन नहीं है। आप जैसे भी मशीन के साथ बात करोगे, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे, उस कॉन्टेक्स्ट को वो नहीं समझ के कुछ और कॉन्टेक्स्ट में समझ के आपको आंसर करेगा। सो दैट थिंग इज नोन एज एम्बिग्यूटी। मतलब जब भी आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस बोल रहे हो, इफ दैट वर्ड इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड if that sentence is not in proper format, so system will be unable to solve your query, system will be unable to solve your problem. So this is called ambiguity, means ambiguity। and NLP system, जब भी बात होती है NLP system की, each and every time NLP system faces this type of issue। This is the basic issue of NLP system, ambiguity। So what is ambiguity? I have already discussed the concept of ambiguity। Now focusing on the concept of types of ambiguity, because there are different kinds of ambiguity in NLP, so we need to discard this ambiguity in our system, in NLP system। So first thing is lexical ambiguity। This ambiguity is basically consists of a single word। Okay, so I'm just giving one example, treating silver। Silver, as we can say silver, we can use it as a noun, as an adjective or a verb। So this is the term, means where we are using, like I have already given one example, bank। So sometimes we can use bank for river bank, and again we can use the same like bank word again for money transaction। So this thing is changed in different context, means हम इन जो दो एक ही वर्ड को हम दो जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, और हर जगह पे जो बैंक वर्ड यूज हुआ है वो कहीं पे एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, और कहीं पे वो एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, या कहीं पे वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। जब भी हम सिस्टम से बात करते हैं, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, उस वर्ड को सिस्टम या तो कभी वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम उसको समझ सकता है। And this is the basic type of lexical ambiguity. This is the basic type of ambiguity, which is known as lexical ambiguity। Second thing is syntactic ambiguity। It is generally happened in a sentence। Okay, so sometimes I'm just giving one example which I have already mentioned in the PPT। The man saw the girl with the telescope। So this is ambiguous data। So we can call it as like the man saw the girl carrying a telescope। एक ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता था कि किसी एक आदमी ने किसी एक लड़की को देखा। ओके, बस
अब आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो? सो देयर विल बी टू काइंड्स, देयर विल बी टू मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, सॉरी दिस सेंटेंस. सो men saw the girl carrying a telescope. So this one is the first sentence, and again I'm using this, the he saw her through his telescope. So this is the entire sentence through which we can analyze the concept. Means यहाँ पे क्या हो रहा है सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी में कि हम लोग एक वर्ड को डिफरेंट मतलब फॉर्म में या डिफरेंट वे में उसको पार्स कर सकते हैं. पार्सिंग इज व्हाट, लाइक हम लोग उस वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं. हमने सिंपल एक मेंशन किया था सेंटेंस को. वो सेंटेंस क्या था? द मेन सॉ द गर्ल विद द टेलीस्कोप. बट दिस इज द ambiguous. So whether so in that situation we can mention that whether the men saw the girl carrying a telescope. This is one of the first scenario, and what will be the next scenario? So men saw the girl through his telescope. So this is the second scenario. So this is the type of synthetic ambiguity. एक ऐसा ambiguity जो आपके जनरली सेंटेंस में होता है, और अगर आप उस सेंटेंस को ब्रेक करो तो उसके दो मीनिंग हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने पहले मेंशन किया कि men saw the girl with the telescope. So this is the first sentence. Now I have to break this. Now I have to parse this sentence into two sentence. मैंने इसको दो सेंटेंस में चेंज कर लिया. एंड इस जो सेंटेंस मैंने पहले कंसिडर किया था उससे फार बेटर हमारा सेकंड जो दो हमने सेंटेंस को पार्स किया है वो उससे फार बेटर हमें एक कॉन्टेक्स्ट या एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. So this is the synthetic ambiguity, and this is generally arise in the sentence, like in a sentence form. So that's why it is known as synthetic ambiguity. Means we need to arrange the word in a proper format so that we can overcome this synthetic ambiguity. Next is semantic ambiguity. Semantic ambiguity generally happens in the context of like it is generally create some kind of misinterpretation. Okay. Generally, it happens when a sentence contains an ambiguous word or phrase. So I'm just giving one example. So the car hit the pole while it was moving. So this is the sentence. Okay. So this sentence has some kind of semantic ambiguity. So now we need to remove this ambiguity. So how it will be removed? So we need to rearrange this sentence. So how we will arrange? The car while moving hit the pole. So this is the first possibility. Again, there will be second possibility. The car hit the pole while the pole was moving. So this is the second possibility to remove the ambiguity of the previous word, sentence which I have mentioned. So semantic and ambiguity sometimes occurs when a sentence contains an ambiguous word or phrase. Like sometimes when it contains same kind of word. Like ambiguous मैंने पहले भी बता दिया, एक ऐसा word वो जो होता है जिसमें कि एक ही word के बहुत सारे meanings होते हैं. तो ऐसा ambiguity, semantic ambiguity ऐसा ambiguity है जो जनरली सेंटेंस में होता है, लेकिन ये सेंटेंस में कब होता है? जब एक ही वर्ड दो से ज्यादा मीनिंग को कंटेन करेगा या अपने साथ लेकर चलेगा, तो उस सिचुएशन में सेमेंटिक एम्बिग्यूटी आती है हमारी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now the next type of ambiguity is called anaphoric ambiguity. This ambiguity generally happens inside the concept of in a discourse. So I have already discussed the concept of discourse. So what is the meaning of discourse? Have you ever analyzed the concept of discourse? In previous class, I have discussed the concept of discourse. Please tell me about the concept of discourse. It concerns or connected sentences. It concerns or connected sentences. Okay, very good. Next, anyone? Ma'am, pardon. What is the meaning of discourse? Meaning of discourse. I have already discussed this concept in previous class, because in previous class we have just discussed the concept of what? NLP. Discord of something that डिस्कोड ऑफ समथिंग, जैसे कोई वर्ड है उसको डिकोड करना, उसका कुछ और मीनिंग निकालना. Anybody else? It concerns the intersentential links. Yeah, intersentential links. Okay, so sometimes this ambiguity, anaphoric ambiguity is a type of it generally happens in sentence connections. Suppose if we are creating a sentence, and if there is no any proper word to connect all this sentence together, so in that situation this type of ambiguity
it may happen there. So this is anaphoric ambiguity. Okay, so for example, I have already mentioned the example for each and every ambiguity. So in this ambiguity, the horse ran up the hill, it was very steep, it soon got tired. So this is the anaphoric ambiguity, means each and every, I'm just talking about the horse, because horse ran up the hill, first sentence, that second, it was very steep. Okay, and the third is it soon got tired. So each and every sentence, there are basically three sentences, each and every sentence is working in same context, but we have mentioned this all sentence in different we have mentioned all these things in different sentences. So this type of ambiguity generally happens with inside the concept of anaphoric ambiguity. Means anaphoric ambiguity happens, it may happens when we are not able to connect our sentence properly. So this type of ambiguity is also a very important, like it's a very important issue in NLP system. So we need to remove this kind of ambiguity. So we have different kinds of natural language understanding rules, which I have already discussed in previous class, through which we can remove all these types of ambiguity. Next is pragmatic ambiguity. So I have already discussed the concept of pragmatic. So what do you mean by pragmatic? Pragmatic knowledge, because in NLP system development we need some kind of linguistic knowledge, no? So in that It is an extension of synthetic knowledge. Semantic knowledge. So what do you mean by semantic knowledge? It deals with words can put together to form correct sentences. Yes, very good. So the thing is that pragmatic means what? It is generally work with the concept of semantic knowledge. Semantic means what? Semantic I have already mentioned. Okay, the words, or like sometimes if we are creating a sentence, हम लोग एक कोई sentence बना रहे हैं, so we need to put proper word in the context of sentence. कि अगर हम कोई sentence बना रहे हैं, तो हमको उस sentence के लिए क्या करना होगा? Proper एक words या proper, मतलब जो भी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हमें प्रॉपर वो मेंशन करना होगा उस कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम उस सेंटेंस का मीनिंग इजीली आइडेंटिफाई कर सके. सो ये भी एक तरह का एम्बिगिटी क्रिएट करता है, बिकॉज मैं पहले भी आपको बोला था कि लिंग्विस्टिक नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनएलपी या फिर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एनएलपी सिस्टम जो है उसके पास दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होगा और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन होगा. तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी एम्बिगिटी. अगर सिस्टम इस तरह की एम्बिगिटी को फेस करता है तो उसको क्या करना होगा कि कुछ नॉलेज उसको अपने साथ रखना होगा. किस तरह का नॉलेज? जैसे प्रैग्मेटिक एम्बिगिटी की भी मैं बात कर रही हूँ और प्रैग्मेटिक नॉलेज की भी मैंने प्रीवियस क्लास में बात की थी. प्रैग्मेटिक नॉलेज मतलब क्या? कि सिस्टम को सिमेंटिक नॉलेज होना चाहिए. जो भी आप वर्ड या सेंटेंस आप यूज कर रहे हो, वो वर्ड उस जगह पे या उस सेंटेंस में वर्ब की तरह काम कर रहा है, या वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, या वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. So we need proper we need to keep proper knowledge of this thing. System needs to keep proper knowledge of this thing. That's why we need to that's why then after that we are able to remove the ambiguity of pragmatic ambiguity. So जब भी हम NLP का सिस्टम बनाएंगे या नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम बनाएंगे कोई भी, उस सिस्टम में प्रैग्मेटिक एम्बिगिटी तो होगी ही, बट वहां पे प्रैग्मेटिक नॉलेज होगा जो कि लिंग्विस्टिक नॉलेज के इनसाइड आता है, और उस बेसिस पे सिस्टम एनालाइज करता है. क्योंकि हम जिस वर्ड, सपोज आपकी कम्युनिकेशन या वर्बल स्किल बहुत अच्छी है, सो यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद द गूगल वॉइस असिस्टेंट, और वो आपके लैंग्वेज को सीख भी रहा है और समझ भी पा रहा है एक बार में. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, किसी की हिंदी अच्छी नहीं है, किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है. सो इन दैट सिचुएशन सिस्टम कैसे समझ रहा है ये सारी चीजों को? ये सारी चीजों को समझने के लिए सिस्टम को क्या करना पड़ रहा है? लिंग्विस्टिक नॉलेज रखने पड़ रहा है अपने पास. और ये जो चीजें मैंने आपको बोली कि आप गलत बोल रहे हो, सो दिस आर द एम्बिगिटी. यही तो एम्बिगिटी है. एम्बिगिटी मतलब क्या? कि आप जो वर्ड और सेंटेंस बोल रहे हो, उस वर्ड और सेंटेंस का आपके बोले हुए सेंटेंस में या फिर आपके बोले हुए वर्ड्स या जो भी चीजें आपने सिस्टम को बोला है या इंस्ट्रक्शन दिया है, वो कैसे समझ पा रहा है. दैट थिंग इज ओनली पॉसिबल बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ
लिंग्विस्टिक नॉलेज, वो लिंग्विस्टिक नॉलेज उसके पास है जिसके इनसाइड वो 5 या 6 तरह की चीजों को अपने पास, नॉलेज को अपने पास रख के इस तरह की एम्बिग्यूटी को हटा सकता है। सो बेसिकली प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी ऐसा एम्बिग्यूटी होता है जो जनरली सेमेंटिक एम्बिग्यूटी के टर्म में काम करता है। और सिमेंटिक एम्बिग्यूटी क्या होती है, लाइक वर्ड और सेंटेंस, अगर आप कोई भी एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो सो यू हैव टू पुट द वर्ड्स इन प्रॉपर फॉर्मेट सो दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड या सॉरी सिस्टम कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेक्स कॉन्टेक्स्ट। वो जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपने सेंटेंस क्रिएट किया है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपने सिस्टम को बनाया है, जिस भी बोल सकते हैं जैसे जिस भी चीज के लिए आपने सिस्टम को क्वेरी किया है, तो सिस्टम उस चीज को समझ सके, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो लोगों के इमोशंस नहीं समझ सकता। हम समझ सकते हैं कि आप किस चीज के बारे में कैसे पूछ रहे हो या क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन सिस्टम नहीं समझेगा। सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ वो किस पे काम करता है, वो डेटा फिल्टर आउट करता है, डेटा को प्री प्रोसेस कराता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, बस इतना ही काम सिस्टम का होता है। सो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को क्या करना होता है, लिंग्विस्टिक नॉलेज को फोकस करना होता है, एनएलपी सिस्टम को लिंग्विस्टिक नॉलेज पे फोकस करना होता है। और एनएलपी का जो लिंग्विस्टिक नॉलेज होता है वो जनरली हमारा एम्बिग्यूटी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। सो प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Okay, so I'm just mentioning the example of like pragmatic ambiguity. So pragmatic ambiguity is what like in pragmatic ambiguity, suppose if I'm mentioning a sentence, I like you too. Okay, so this is a sentence. Okay, so how you can understand this sentence, I like you too, means it is a reply for someone's, the person which you have mentioned earlier that I like you. So in that situation, you are replying that person, I like you too. So it just identifying the concept means you are basically I like you, this is a concept. So I like it just like it is a process, means you are you are going to like that person the way he is like the way he is like you. So this is the concept of like pragmatic ambiguity. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली सेमेंटिक्स पे बात कर रहे हैं, सेमेंटिक एम्बिगिटी की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सेंटेंस आप देख रहे हो, जो सेंटेंस की आप बात कर रहे हो, आई लाइक यू टू, सो इट have multiple interpretation, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि I like you and I like just like someone else does। मतलब कोई अगर आप इस तरह के वर्ड बोल रहे हो, मतलब कि इसके पहले आपको कहीं से आपने किसी को रिप्लाई दिया है, या आप ऐसा चीज मेंशन कर रहे हो कि आपको किसी ने बोला है कि that person likes you and in that situation you are mentioning the same reply for that person, कि वो आपको जितना पसंद कर रहा है आप भी उसको उतना ही पसंद कर रहे हो। So this is the example of pragmatic ambiguity. So system will not understand this concept if you are mentioning that kind of data, that kind of word in a system like in Google voice assistants. So system will not understand this concept because क्योंकि सिस्टम को पता नहीं है कि पहले जो यूजर ने बोला था वहां पे क्या था और ये किस कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। हाँ, सिस्टम को इतना बहुत अच्छे से पता है कि ये आपने किसी और के कॉन्टेक्स्ट में बोला, मतलब जिस पर्सन ने आपके पास पहले बोला है कि दैट मतलब कि आई लाइक यू, तो आपका जस्ट एक रिप्लाई था वहां पे कि हाँ I like you too. So this is the way through which system will analyze कि हाँ ये एक तरह का क्या बोल रहा है कि you are comparing with someone like you have mentioned the thing that is just like you like me. So this is the thing that is basically considered inside the concept of pragmatic ambiguity. So these are the different kinds of ambiguity which I have discussed in the concept of NLP ambiguity, because in NLP system it is a very common concept of having different kinds of ambiguity, because एक word के बहुत सारे meanings हो रहे हैं, एक sentence के बहुत सारे meanings हो रहे हैं, but system needs to understand this concept, system needs to understand this word meaning, so that it is very important, because it is very important work of system to generate the result of the user on the basis of the query which is asked by the user. तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी को फेस कर रहे हैं। उस एम्बिग्यूटी को हम लिंग्विस्टिक नॉलेज के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम चेंज करते रहेंगे। जैसे आप एनएलपी में जैसे आप डेटा प्रोसेस करोगे तो आप एक ही वर्ड मेंशन करोगे और आप देखोगे कि पाइथन लाइब्रेरी एनएलटीके पे हम लोग काम करेंगे जनरली। तो एनएलटीके पे आप देखोगे कि एक वर्ड का मतलब एक वर्ड में आपने अगर सेम सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस में आपने 2-3 वर्ड रखे हैं तो अलग अलग वे में या अलग अलग फॉर्मेट में उसकी सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जा रही है, या फिर जो वर्ड है वो कहीं वर्ड की
तरह काम कर रहा है, वो कहीं एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। या फिर एनएलपीके में बहुत सारे ऐसे बहुत मतलब डिक्शनरी क्रिएटेड है, एनएलपी के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में वहाँ पे अपलोडेड है, वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप जब एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करोगे ना, तो वो बता देगा कि हाँ ये वर्ड का नाउन मीनिंग, मतलब नाउन के लिए ये यहाँ पे ऐसे यूज होगा, अगर मैं इसको एडजेक्टिव के लिए यूज करूँ तो एडजेक्टिव में इसकी ये मीनिंग होगी, वर्ब में इसकी ये मीनिंग होगी। सो यू आर एबल टू एनालाइज कि आपने उसको किस तरह से यूज किया था और वो आपके सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक natural language understanding system. Now we need to focus on the concept of like natural language generation, because in NLP we need to analyze the concept of natural language understanding, because there are two concepts now. There are basically two components. First component is what? First component is natural language understanding. जो भी आप सिस्टम बना रहे हो, उस सिस्टम के पास आप जो भी सिस्टम बनाओगे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप एक गूगल वॉइस असिस्टेंट टाइप का ही सिस्टम बना रहे हो, उस सिस्टम के पास क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आप जब भी यूजर उसके साथ बात करे तो सिस्टम यूजर के लैंग्वेज को, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, वो उस लैंग्वेज को इजिली समझ पाए, सिस्टम उसको अच्छे से समझ पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए। तो इस तरह के लिए हमें क्या चाहिए था? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि इन एनएलपी वी नीड टू कंपोनेंट्स, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड सेकंड वन इज व्हाट? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। जब तक सिस्टम लैंग्वेज को समझेगा नहीं, ह्यूमन जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं सिस्टम के साथ, जब तक वो समझेगा नहीं, वो जनरेट कैसे करेगा? सो दिस इज द सेकंड थिंग। अब ये क्या होता है कि जैसे कि सिस्टम में, क्योंकि एनएलपी की हम बात कर रहे हैं, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बात हो रही है। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में फर्स्ट क्या था हमारा? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। सिस्टम को पहले समझना है कि यूजर ने उसको क्या बोला। यस, इज देयर एनी क्वेरी? Ma'am, can you repeat semantic ambiguity? Semantic ambiguity, yeah, just wait. So semantic ambiguity generally happens when we are using some kind of word and these words can be misinterpreted sometimes. Okay, so this is called semantic ambiguity. It generally happens in a sentence. Suppose if we are creating a sentence and inside that we are mentioning word. Okay, हम लोग एक जब sentence create करते हैं और उसके inside जो हम word mention करते हैं, क्या होता है कि वो word कभी कभी ambiguous होता है। मैंने अभी just आपको बोला कि आप अगर मान के चलो कोई एक वर्ड यूज कर रहे थे, बैंक की ही बात की थी मैंने लास्ट डे कि मेरे पास एक वर्ड है बैंक, तो अब आप सेंटेंस के बेसिस पे पता करोगे कि वो जो वर्ड था बैंक का, वो एक रिवर बैंक की बात हो रही थी या वो एक मनी ट्रांजेक्शन बैंक की बात, मनी ट्रांजेक्शन बेसिस लाइक बेस पे बात हो रही थी। तो ये एक तरह का एम्बिगिटी है। जनरली क्या होता है कि जब आप कोई एक सेंटेंस क्रिएट करते हो ना, तो उस सेंटेंस से हमें मीनिंग समझ में नहीं आती कि उस सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। ठीक है, जो वर्ड यूज हुआ है, अगर मैं पूरा एक सेंटेंस आपने क्रिएट कर लिया और आपने मेंशन नहीं किया कि ये रिवर बैंक की बात हो रही है या मनी, आई हैव टू विजिट बैंक, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि आप कौन सा बैंक जाना चाह रहे हो? मनी ट्रांजेक्शन करने जाना चाह रहे हो या रिवर बैंक की बात कर रहे हो? तो इस टाइप की एम्बिगिटी को हम लोग सिमेंटिक एम्बिगिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. But ma'am, how can the car hit the pole while the pole was moving? How can pole move? Yeah, this is the ambiguous and this is the ambiguous data, no? This one is the ambiguous data, the data which I have mentioned here, because this sentence is basically used to analyze the concept of like ambiguity. So I have already, मैंने क्या बोला कि हम लोग कभी एक सेंटेंस ऐसा क्रिएट करेंगे, सिस्टम को नहीं पता है ना कि हमें हमारे वर्बल स्किल कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हम उल्टा सेंटेंस भी कुछ बोल सकते हैं, तो सिस्टम उसको कैसे एनालाइज करेगा? तो उस सिचुएशन में मैंने यहाँ पे लिखा कि द कार हिट द पोल व्हाइल इट वाज मूविंग। कार हिट द पोल, किसके बारे में बात हो रही है? कार की बात हो रही है कि कार मूव कर रहा है कि पोल मूव कर रहा है? पहले ही सेंटेंस में आपको ये चीज पता चल रहा है, द कार हिट द पोल व्हाइल इट वाज मूविंग। ये मूविंग किसके लिए यूज हुआ? कार के लिए यूज हो रहा है या पोल के लिए मूव हो रहा है? और कार। ये ना, हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो पहला मैंने यहाँ पे कैसे दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, द कार while moving hit the pole, पहला ये इंटरप्रिटेशन था। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? the car hit the pole while the pole was moving। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो गया कि पहले हमने क्या बोला कि हमने पूरा सेंटेंस मेंशन किया कि the car hit the pole while it was moving,
तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ना हमने कार मेंशन किया, ना हमने पोल मेंशन किया, हमने बस लिखा कि कार ने पोल को हिट किया जब वो मूव कर रहा था। कौन मूव कर रहा था? पोल मूव कर रहा था, बिकॉज हम ह्यूमन नहीं है, हम समझ जाएंगे कि पोल जो है वो स्टेशनरी है, वो कभी मूव नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। कार है वो मूव करेगा, लेकिन सिस्टम को नहीं पता है ना, सिस्टम तो इमोशनलेस है, सिस्टम को कुछ भी मीनिंग नहीं पता है, उसके पास सारी डिक्शनरी है, पूरा डिक्शनरी है, उसके पास पूरा डेटा है, कार वर्ड का भी उसके पास डेटा है कि कार एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट मूव, तो उस बेसिस पे वो एनालाइज करेगा। लेकिन हम हमारे लिए ये एनालिटिकल प्रोसेस है, हम इसको इजीली एनालाइज कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में ये जो हमने सेंटेंस मेंशन किया है कि द कार हिट द पोल व्हाइल इट वाज मूविंग, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो आपका वर्ड जो सेंटेंस है इसकी दो मीनिंग आ रही थी। तो पहला इंटरप्रिटेशन हमने मेंशन किया कि द कार व्हाइल मूविंग हिट द पोल, ये पहला इंटरप्रिटेशन था। जो कार है जब वो मूव कर रहा था तो उसने पोल को हिट किया, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। अब दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? द कार हिट द पोल, the car hit the pole while the pole was moving। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये था कि कार ने पोल को हिट किया जब पोल मूव कर रहा था। सो ये अब कहीं अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हम तो इजीली इसको एनालाइज कर लेंगे कि पोल मूव नहीं कर सकता, इट इज जस्ट वी कैन कंसीडर इट एज एन वी कैन कंसीडर इट एज लाइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन सिस्टम को नहीं पता है। तो उस सिनेरियो में क्या हो गया कि सिस्टम को इस तरह की एम्बिगिटी को रिमूव करना, उसको समझना पड़ेगा। तो सिस्टम के पास बहुत सारे ऐसे डिक्शनरी में वर्ड्स हैं, एनएलटी के जो है, एनएलटी के की मैं अभी बात करूंगी, एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये पाइथन का एक तरह का लाइब्रेरी है, जनरली इसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। तो जब ये लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग नमपाई की काम करते थे, नमपाई किसके यूज होता है? न्यूमेरिकल डेटा के लिए, पांडास यूज करते हैं। तो वैसे ही एनएलटी की एक लाइब्रेरी फंक्शंस है जिसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं, जनरली पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि इसको इंपोर्ट करते हो ना एनएलटीके को, तो वो क्या करता है कि बहुत सारे डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी को अपने साथ वो कैरी कर लेता है, और उस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, और हर वर्ड्स का उसमें अलग अलग मीनिंग है। तो उस सिचुएशन में वो एनालाइज करेगा कि जो कार है दैट ऑब्जेक्ट इज मूवेबल ऑब्जेक्ट, बट द पोल इज नॉट अ मूवेबल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये मूवेबल ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो उस सिचुएशन में वो एनालाइज करेगा कि जो इसका मतलब इस सिचुएशन में एनालाइज करेगा कि हाँ, कार ने पोल को हिट किया जब वो मूव कर रहा था, जब कार मूव कर रहा था, क्योंकि कार एक क्या है? मूवेबल ऑब्जेक्ट है। और वो उसने कहाँ से फाइंड आउट किया? तो वो उसने एनएलटीके में जो डिक्शनरी अपलोडेड है, जो डिक्शनरी ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसके इनसाइड बहुत सारे 3-4 वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, उस वर्ड से उसने डिफाइन किया इस चीज को, ठीक है। इज देयर एनी क्वेरी? No, ma'am, understood. Okay, clear now? Okay, now the next thing, I have mentioned two things, natural language components, natural language processing components. So inside that we have mentioned two things also. What was the component? Natural language understanding, and second one is what? Natural language generation. So natural language understanding is a very important part. क्यों? क्योंकि जो हम सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम को हमारा लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा, तो वो उसको प्रोसेस कैसे करेगा, या हमें उसके रिगार्डिंग क्वेरी, जो हमने क्वेरी किया सिस्टम के साथ, वो उसके रिगार्डिंग हमें जो आउटपुट होगा या उसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट होगा वो हमें कैसे अवेल कराएगा। सो इन दैट सिचुएशन हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, हमें नहीं, बेसिकली सिस्टम को, जो नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। जब भी सिस्टम उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा जो ह्यूमन ने उसके साथ इंटरेक्शन में बोला है, जो ह्यूमन ने इंटरेक्ट करके बोला है, उस लैंग्वेज को जैसे ही वो अंडरस्टैंड करेगा, जैसे वो समझेगा, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट इज टू जनरेट द रिजल्ट ऑफ दैट क्वेरी डेटा। मतलब जो डेटा क्वेरी किया गया है उसके लिए वो रिजल्ट जनरेट करेगा। फॉर दैट पर्पस वी नीड अनदर सिस्टम, वी नीड अनदर कंपोनेंट, दैट component is natural language generation. This one is the other component. Okay, this is the another component of natural language processing. Okay, सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का ये दूसरा कंपोनेंट है जो जनरली क्या करता है कि जब भी यूजर कोई भी क्वेरी करेगा, उस क्वेरी को उसने समझ लिया, लेकिन उस क्वेरी को सेम लैंग्वेज में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप हिंदी में बात करते हो गूगल वॉइस असिस्टेंट से, तो वो आपको हिंदी में ही रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में
कोई क्वेरी कर दो, करके भी आप देख ही सकते हो कि ओके गूगल टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो उधर से जो आपको लैंग्वेज या उधर से जो आपको क्वेरी डेटा का जो रिजल्ट मिलेगा, एक ऑडियो क्लिप मिलेगा, उस ऑडियो क्लिप में जो लैंग्वेज यूज हुआ रहेगा वो भी इंग्लिश ही रहेगा, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये कंपोनेंट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट इसमें अब काम कैसे होता है, ये जनरली प्रोसेस कैसे करता है, ये जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन सिस्टम है, ये जो कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ये काम कैसे कर रहा है। तो इसको काम करने के लिए क्या करना पड़ा है, पहले इसको टेक्स्ट की प्लानिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की प्लानिंग कहाँ से करेगा, टेक्स्ट की प्लानिंग करने के लिए इसको क्या करना होगा, नॉलेज बेस को के साथ इसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कैन एनीवन प्लीज टेल मी द कांसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस, व्हाट इज नॉलेज बेस, बिकॉज इन एआई और इन फजी लॉजिक वी नीड द कांसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस। एआई में नॉलेज बेस क्या होता है, what is knowledge base, can anyone please explain about the concept of knowledge base? It is a store of data that represent information about something. Very good, बहुत अच्छा। Okay, so it is it is just a storage system where different kinds of data is basically stored, and sometimes suppose हम लोगों के पास knowledge base में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो पहले से स्टोर है। हमें अगर कुछ डिसीजन लेना है या हमें अगर कुछ ऐसा मतलब कुछ एक बोल सकते हैं ना, सिंपली हम बोल सकते हैं डिसीजन, तो हमें अगर एक डिसीजन लेना है तो हम ह्यूमन बीइंग है, हम किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी और का भी रिव्यू ले सकते हैं, किसी और का व्यू ले सकते हैं, किसी और से हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन सिस्टम को तो नहीं पता है सिस्टम किससे हेल्प लेगा। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज बेस्ड सिस्टम का। वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके पास की बहुत सारे पहले से ही नॉलेज उस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं, यस एनी क्वेरी। Knowledge base and learn base is a different thing. Like in AI, basically we need, as we can say, like learn base is a different thing because it is totally based on the concept of like learn. So we need to, मतलब हमको जब सीखने की जरूरत होगी तब हम उस पर काम करेंगे। हमें यहाँ पे कोई डिसीजन लेना होगा तो उस टाइम पे हम नॉलेज बेस पे काम करेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट प्लानिंग इज व्हाट, टेक्स्ट प्लानिंग मतलब कि जब भी सिस्टम के पास कोई डेटा आया, सपोज मैंने पूछा कि व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज, तो ये क्या था, एक वर्ड था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड है, हमको नहीं पता, सिस्टम को भी नहीं पता कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हम सिंपली पूछ रहे हैं व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज। तो उस टाइम पे सिस्टम ने उसको अंडरस्टैंड किया नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के थ्रू। अब उसको रिवर्ट करना है, रिवर्ट भी करना है सेम लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में यूजर ने क्वेरी करा है। तो उस सिचुएशन में उसे क्या करनी होगी, टेक्स्ट की प्लानिंग करनी होगी। टेक्स्ट की प्लानिंग कैसे करेगा, तो नॉलेज बेस से कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, लाइक जो भी डेटा यूजर ने क्वेरी किया था, उस डेटा का जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगा, जो कि एक रिपोजिटरी हम बोल सकते हैं या एक सिस्टम बोल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो स्टोर्ड है किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग या किसी भी लाइक सेंटेंस के रिगार्डिंग, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। नॉलेज बेस उसको हम लोग जनरली बोल रहे हैं, नॉलेज बेस से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर वो टेक्स्ट की प्लानिंग करेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में, कि पहले वो टेक्स्ट की प्लानिंग करेगा और टेक्स्ट की प्लानिंग करने के लिए वो नॉलेज बेस की हेल्प लेगा, वहां से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को या उसके नॉलेज को वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, देन फिर टेक्स्ट की प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट इज सेंटेंस प्लानिंग। जैसे ही टेक्स्ट की प्लानिंग होगी, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट से बना होता है, तो पहले वो टेक्स्ट की प्लानिंग करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, सेंटेंस की प्लानिंग करेगा। सेंटेंस की प्लानिंग में क्या करेगा वो, कि वो करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करेगा, जो कि सिंपली एज वी कैन से कि इट विल इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड एंड फॉर्मिंग सेंटेंस, जो कि प्रॉपर एक ग्रामर के फॉर्मेट को फॉलो करेगा। मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि कोई भी यूजर अगर इंटरेक्ट कर रहा है, मान लो किसी की वर्बल स्किल अच्छी नहीं है, मान के चलो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मान के चलो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, I need to ask about some kind of query with the system. So in that situation वहां पे क्या होगा, सिस्टम उसको समझ तो लेगा कैसे भी करके उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो रिस्पॉन्ड प्रॉपर फॉर्मेट में करेगा, प्रॉपर ग्रामेटिकल मतलब कोई एरर नहीं होंगे। अगर आपने सिस्टम से क्वेरी किया और कोई ग्रामेटिकल एरर्स हो गए वहां पे, तो सिस्टम जब रिस्पॉन्ड करेगा तो वहां पे कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। और इस तरह की
बिना मतलब एक सेंटेंस को जनरेट करना में एक सिस्टम, मतलब जो सिस्टम होगा वो जो सेंटेंस को जनरेट करेगा वो एक प्रॉपर वर्ड को सेलेक्ट करेगा, प्रॉपर सेंटेंस को एक उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस को सेलेक्ट करेगा विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, एंड देन फिर उसकी क्या करेगा, उस सेंटेंस को जनरेट करेगा। तो पहले क्या हो जाती है हमारी टेक्स्ट की प्लानिंग करेगा, देन आफ्टर सेंटेंस प्लानिंग, एंड द लास्ट वन इज टेक्स्ट रियलाइजेशन। फिर वो क्या करेगा कि जो प्लान सेंटेंस था उसको वो जो यूजर ने क्वेरी किया था, क्योंकि यूजर ने जो क्वेरी किया था वी कैन कॉल इट एज लाइक रियल डेटा, ओके। तो वो क्या करेगा, यूजर के क्वेरी डेटा के बेसिस पे अपना जो उसने रिजल्ट, अपना जो उसने टेक्स्ट और सेंटेंस प्लान किया उसको वो मैप करेगा, एंड देन आफ्टर दैट उसको जनरेट करेगा। सो दिस ऑल थिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन सिस्टम, सो कंपोनेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this one is the completed natural language components. So again, I will discuss this different concept in today's class, that is the natural language tools. So there are different kinds of natural language tools which we need to use in our natural language processing. So before that, I'll start another PPT. Just wait. Next class, we will discuss the concept of text classification, like data pre-processing and different kind of pre-processing techniques in natural language processing. So in next class, we will discuss that concept, like data pre-processing, why we need pre-processing in natural language processing, and different kinds of pre-processing techniques, where we will discuss bag of words, n-gram, data like TF, IDF, lemmatization. So these are the techniques, and after that we will proceed this concept with Python programming. So in today's session we will discuss another concept, that is different kinds of tools which is basically used in natural language processing. Just wait, I'm just sharing my screen so it will be easy for you. Okay, so the next thing is what natural language processing tools. So there are different kinds of tools which is basically helpful in natural language processing concepts. So the first tool that is basically used in natural language processing, so that is like NLTK. मैंने अभी just आपसे बात की थी कि NLTK क्या है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, और ये कहाँ पे यूज हो रहा है जनरली। अभी हम क्या करेंगे, जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे ना, सो वी विल यूज दिस tool, natural language toolkit. So this toolkit is generally useful in Python programming, and it is basically used to conduct symbolic and statistical analysis. So suppose अगर मैं कोई एक word ले रही हूँ, मैं अगर कोई एक सेंटेंस बोल रही हूँ, तो उस वर्ड को सेंटेंस से मुझे कैसे लिमिटाइजेशन करना है, कैसे उसको प्री प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें वहां पे आपको, जब आप NLTK यूज करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें, मैंने बोला कि अगर आप कोई भी वर्ड मेंशन कर रहे हो, लाइक बैंक की आपने मेंशन किया था, क्योंकि उसकी दो मीनिंग मैंने आपको बताई, ठीक है, या पोल की बात करी या कार की बात करी, तो वहां पे कैसे एनालाइज कर रहा है सिस्टम की कार मूवेबल है कि पोल मूवेबल है, क्योंकि सेंटेंस से तो यही लग रहा था कि दोनों मूवेबल है, लेकिन जब हम तो ह्यूमन बीइंग, हमें पता है कि कौन सी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कौन सी मूवेबल ऑब्जेक्ट है। उस सिचुएशन में वहां पे एनएलटीके के इनसाइड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, डेटा डिक्शनरीज हैं, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स को ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, तो उसमें उससे वो हेल्प लेके बताएगा कि हाँ पोल मूव कर रहा था, ना कि लाइक कार मूव कर रहा था, ना कि पोल मूव कर रहा था। तो वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ लाइक डिक्शनरी व्हिच इज बेसिकली डिफाइंड इनसाइड द कांसेप्ट ऑफ एनएलटीके, नेचुरल लैंग्वेज toolkit. So this toolkit is basically helpful. It is basically helpful in natural language processing. So in whenever we will work with the concept of like Python, so in next class, so I have already discussed. So we will use this toolkit, natural language toolkit, and this toolkit is only supportable by the Python coding programming language. Next is SPACY. So SPACY is it's a very important part of like natural language processing, and it is generally helpful in both language, Python and Python. So I think most of you are not aware about the concept of Python. So it is just an advanced version of Python, which is basically not usable by the regular users and students. It is generally used by the industrialists for like different like research purpose. So SPACY is also, it's a
very important, sorry, it's a free and open source library for NLP, which is basically implemented in Python as well as in Python. So it is generally used to extract information for natural language understanding. जो हम बात कर रहे थे natural language understand कैसे करेगा, so that जो हमारा system था natural language understanding का जो system था, उसमें जो हम लोग डेटा या फिर जो हम नॉलेज या इंफॉर्मेशन को जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो चीजें कौन हमारा मतलब उस चीज को करने में, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने में या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में कौन हमारी हेल्प कर रहा है? तो दिस टूल Spacy is a tool which is basically written in Python and Python, and it is basically used to build information, or it is basically used to extract information for natural language understanding system. So there are different kinds of tools, but in our session we will use NLTK, which is basically implemented in Python. Okay, next is Berkeley neural parser. So it is just a parsing process. So parsing means what? Can anybody tell about the concept of parsing? It's just a process of breaking, na? Breaking. So we are going to break the sentence. Berkeley neural parser. So it is totally depend on the concept of like neural network. Neural network is also identified with the concept of AI, because हम लोग इसकी बात कर रहे थे neural network की. So Berkeley neural parser is a type of like parsing techniques where the sentence is break. It is means the sentence needs to break, and the syntactic structure of like the syntactic structure, या फिर हम एक सिंपल से वर्ड में बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, we will break that sentence into sub phrases. हम लोग उसको sub phrases में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. So this is the another tool. This is basically used for natural language processing. Next is NLNLP. NLNLP means it is just like Spacy, but it is generally used in research. मतलब जो लोग रिसर्च में काम करते हैं, like natural language processing पे भी बहुत रिसर्च हो रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला था कि sentiment analysis is a very important thing. वर्ड टोकनाइजेशन, हर एक वर्ड को एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है. TF-IDF या फिर बैग ऑफ वर्ड्स या रिव्यू एनालिसिस. So all these things are the all these topics are the very useful topics. This all topics are useful in research. Okay, ये रिसर्च में बहुत यूज हो रहे हैं इन सब चीजों के लिए. तो वहाँ पे जो हम टूल यूज करेंगे, वहाँ पे जो टूल यूज होगा उसमें से हमारा एक टूल है LNNLP. ठीक है. Next is TextBlob. TextBlob is also like Python library की तरह ही ये काम करता है, NLTK की तरह ही काम करता है ये. और थोड़ा ये मतलब बोल सकते हैं कि मतलब एक बोलते हैं ना कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है मतलब NLP के लिए. तो इसको जनरली प्रोजेक्ट्स में काम किया जाता है. जो बड़ी बड़ी कंपनी NLP पे काम कर रही है, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट बोल रही हो, फेसबुक वगैरह पे जैसे काम होता है, रिव्यू एनालिसिस हो रही है यूजर की, आपको जो कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, सब मशीन लर्निंग NLP पे काम चल रहे हैं. तो वहाँ पे हमारा टेक्स्ट ब्लॉक यूज होता है. उसके बाद हमारे पास आती है Gensim. Gensim is also Python library, and that is basically created for information retrieval in natural language processing. Natural language processing में हमें information retrieval की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. तो Gensim भी जो है एक तरह का हमारा Python library ही है, और ये जैसे हमारा NLTK वो भी क्या था, हमारा Python library ही था. तो Gensim भी हमारा एक तरह का Python library है, और इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. सो इसके इनसाइड बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिसको यूज किया जाता है. और एक तरह से बोल सकते हैं कि एक वर्ड आता है कॉर्पस. तो आई डिस्कस दैट वर्ड इन नेक्स्ट क्लास. तो वहाँ पे भी मैं Gensim के बारे में डिस्कस कर लूंगी. तो इट इज जस्ट अ पाइथन लाइब्रेरी व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और जिसमें हम लोग कॉर्पस एनालिसिस करते हैं. सो कॉर्पस जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, मतलब एक वर्ड का जो होता है, एक वर्ड का जो मीनिंग होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. कॉर्पस की बात मैं नेक्स्ट क्लास में भी करूंगी. सो दिस ऑल आर द टूल्स व्हिच इज बेसिकली यूज्ड इनसाइड द NLP, जो हम लोग NLP में यूज करते हैं. सो वी विल बेसिकली वर्क विद द कांसेप्ट ऑफ NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट. इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन पाइथन. तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास से जब प्री प्रोसेसिंग हमारा स्टार्ट होगा, उसके साथ ही हम पाइथन प्रोग्रामिंग में काम करेंगे और हम इस टूल को यूज करेंगे. So is there any doubt? Is there any query? So if you are facing any kind of query, if you are having any kind of query, so feel free to ask me. Ma'am, can you repeat Gensim? Yeah, Gensim is just like as I've mentioned already. I've already mentioned the concept Gensim. Gensim is just like a it is already written in Python programming. It is just a library of Python programming. Okay.
So it is generally used for information retrieval, nothing else. Because in natural language processing, we need the concept of like information retrieval, because without having the concept of information retrieval, we are not able to process our data. So it is Gensim मतलब एक आप बोल सकते हो ना कि पाइथन प्रोग्रामिंग का एक लाइब्रेरी है और इसको जनरली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज किया जा रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। लेकिन ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होगा कैसे, तो उसके लिए वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स को अपने साथ यूज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वो एल्गोरिथम यूज करता है ना, तो उस एल्गोरिथम में वो कॉर्पस साइज को एनालाइज करता है। तो कॉर्पस इज द न्यू थिंग, आई हैव ऑलरेडी मेंशन द कांसेप्ट, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट आप पूछ रहे, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ओके। सो कॉर्पस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करोगे ना, हम सेंटेंस बार बार यूज कर रहे हैं, वहां पे सेंटेंस नहीं होगा। वहां पे हम लोग अभी नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, तो हम लोग एक मतलब 4 या 5 वर्ड से मिला हुआ कोई एक बड़ा सा कोई एक लाइन में लिखा हुआ कोई वर्ड है, तो हम लोग उसको सेंटेंस की तरह कंसीडर कर रहे थे। लेकिन हम जब एनएलपी पे काम करेंगे तो हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते हैं, वी विल कॉल इट एज लाइक कॉर्पस, ओके। तो जेंसिंग का काम क्या होता है कि जो वो जनरली उसका काम है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, वो नेचुरल लैंग्वेज के लिए इंफॉर्मेशन को नेचुरल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। उसके पास कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स है जिस बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसके लिए रिट्रीव करेगा, वो जो कॉर्पस होगा, जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे या कलेक्शन ऑफ सेंटेंस होंगे जो आप प्रोसेस कराना चाह रहे हो, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा। हम दोनों के टर्म में बात कर रहे हैं। कॉर्पस मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ वर्ड और कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। अभी तक हम लोग कलेक्शन ऑफ वर्ड और कलेक्शन ऑफ सेंटेंस ही बोल रहे थे नॉर्मल से लैंग्वेज में, लेकिन जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करेंगे तो हम उसको कॉर्पस बोलते हैं। तो ये कॉर्पस जो होता है, इस कॉर्पस में कॉर्पस की इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए ये बहुत सारी एल्गोरिथम को यूज करता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है उसमें हमारा जेंसिम का यही यूज रहता है। Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Is there any query? If anyone having any kind of query regarding today's session or previous session, so feel free to ask me, because I think most of you are not you were not able to join the first day session. So if you have any kind of query regarding natural language processing, because I have already mentioned the concept, I have already mentioned the thing that from next day, means the previous day I mentioned कि मैं next class से Python programming के concept को start करूँगी, but before that I have discussed the components of natural language processing. तो ये जो concept आपका clear है, so you are able to understand the entire concept of natural language processing. क्योंकि अब जो हमें काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्री प्रोसेसिंग पे काम करना है, और प्री प्रोसेसिंग में बहुत ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करेंगे। तो जैसे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होगी, उसके बाद ही आपके लिए काम करना इजी हो पाएगा। तो अगर किसी को भी डाउट है, फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड, दिस वन इज द सेकंड थर्ड डे सेशन, so in that session I have discussed whatever the concept which I have discussed. So if you have any kind of query, feel free to ask. No, I think there is no any query, no? Okay. So thank you everyone. Thank you so much for the for your support. So we will continue our session in on next day at same time. It will be 7 o'clock. So thank you for. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Sangeeta.